Welcome to my English channel, English at Ease. Children, today I am going to teach you a very famous poem of your syllabus, The World from a Railway Carriage, written by R. L. Stevenson. This poem conveys us a very beautiful thought to admire the natural beauty of our surrounding and to enjoy the nature of our surrounding which we ignore all the time. The little boy from a railway carriage is telling us different sides of the nature. Before explaining the poem, class, I want to show you some of the pictures related to this poem so that you will understand the poem, you will realize the theme of the poem very well. Now, children, look at these pictures. This is the railway track goes through the forest. Class will see that one train is coming through the forest. It is very beautiful. Then is there. Next picture. This is the picture of the station, small station, very natural. Wow! This is the picture of the hill station. There the bridge. You can see here the hill is covered with the thick forest. Now see that the train is coming. This is the train. You look at the picture. One stream flows. You see that the river comes from the top of the hill, top of the mountain. The same picture is there, very thrilling picture, adventurous, romantic. You see that the train is passing by over the bridge. The river, the falls, waterfalls. Same picture is there. Again the natural scenario. The train is coming. Just the single track is there. Again the Indian Railway. You see that the passengers inside the compartment. The train is gone. The train has gone. Now I want to show you the picture of the tramp. Children, देखो ये एक ट्रम्प का पिक्चर है. ट्रम्प मीन्स ऐसा व्यक्ति जो आप अक्सर रेलवे स्टेशन में, कहीं बस स्टैंड पर आप देखते होंगे एमलेसली घूमते रहता है. इनका जिंदगी का कोई मकसद नहीं है. दे आर द एमलेस पीपल, पर्पसलेस.
They do nothing at all. They beg and they leave. They are the tramps. He is a tramp. See that this is the picture of old tramp. बहुत पुरानी तस्वीर है। आप देखो रेल ट्रैक के साइड में खड़े हैं एक ऐसे ही लोग। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पोएम द वर्ल्ड फ्रॉम ए रेलवे कैरेज। पोएट का नाम R.L. Stevenson. Now see that from the eyes of that child from the cabin of the railway carriage, we see the whole world, the natural beauty of the world which we ignore. Nowadays, class, you know that each and every man is busy with his or her work. We have no time, we have no leisure time to enjoy the nature. The natural beauty is the gift of the God. We should look at them, we should enjoy them. It is very pleasant to see the natural beauty. Now, let's start the poem. अब हम लोग शुरू करते हैं poem. The world from a railway carriage. Very beautiful combination of the words you see in the first two lines and the other lines. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches. देखो, the poet is telling us, poet कह रहे हैं ट्रेन बहुत तेज गति में, बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे की ओर दौड़ती है, जैसे कि मानो परियों से भी तेज गति में। Two fantastic elements are there, fairies and witches. Fairy means परी, जो हम लोग कहानी में पढ़ते हैं। Children, you might have read in your earlier books about the fairies. परियों की कथा। और परी जिस तरह से तेज गति में उड़ जाती है, विचेस, चुड़ैल, इन लोग से भी, ये सबसे भी तेज गति में ट्रेन आगे की ओर चलती है, दौड़ती है। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, बहुत सारा ब्रिज के ऊपर से पार होकर अगल बगल में बहुत सारा घर को देखते हुए, कभी देखते हैं बहुत सारा घर ट्रेन से दिखाई देता है। हेजेस एंड डिचेस, कईक झाड़ियाँ उनको नज़र आता है, जंगल झाड़। डिचेस, गड्ढा, पहाड़ पर्वत, सभी को देखते हुए कभी आगे की ओर बढ़ते रहते हैं ट्रेन के साथ। ट्रेन का खिड़की से उनको ये सभी चीज़ को देखने बहुत मज़ा आता है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल, all through the meadows, the horses and cattle. You see the combination of the words battle and cattle. In the previous video, already I discussed about the rhyme scheme, and I have given the example of this poem. There is a very beautiful combination of the words you see that: witches, ditches, battle and cattle, plain and rain, eye and by, scrambles and brambles. Very गुड कॉम्पोजिशन ऑफ द पोएम। एक दूसरे का तालमेल बहुत सुंदर है। आप सभी शब्दों को देखो, एक दूसरे से मिलता जुलता है। दैट इज़ द राइम स्कीम।
AABB. In the previous video, I discussed it. You can watch it. Now see that. All through the meadows and horses and cattle. ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है. उनका ट्रेन की आवाज़ कभी ने कंपैरिजन किए, लग रहा हो कि एक साथ बहुत सारा सैनिक, बहुत ट्रूप्स, सैनिकों का समूह युद्ध की ओर जा रहा हो और उसका पैर के कदम कदम मिलाते हुए जो आवाज़, उस आवाज़ के तरह ट्रेन की आवाज़ उनको सुनाई दे रहा है. और ट्रेन मिडोज़ घास के मैदान को चीरते हुए, बीचों बीच पार होते हुए, खिड़की से कवि ने बहुत सारा हॉर्सेस और कैटल, विभिन्न तरह का जानवर को देखते हैं. नेक्स्ट लाइन. ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन. सभी दृश्य उनके सामने से नज़र आता है. हिल का, प्लेन मीन समतल, पहाड़, सभी जगह को उन्होंने देखते हैं. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ये सभी उड़ जाता है. ट्रेन जब बहुत तेज़ गति में आगे की ओर बढ़ती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश होता हो, वो बारिश भी ट्रेन को रोक नहीं सकता. हेवी रेन भी सामने में फीका पड़ जाता है, उड़ जाता है. फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, सभी पार हो जाता है. ट्रेन इतना तेज़ गति में आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर चलती है, जो उनके सामने में सभी दृश्य, सभी नेचुरल जो सीन उन कवि देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी पार हो जा रहा है. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही पेंटेड स्टेशंस व्हिसल बाय. आप लोग देखे होंगे ट्रेन जर्नी में, अगर आप किए हो तो आप याद करो, एक्सप्रेस ट्रेन कुछ कुछ स्टेशन में नहीं रुकती है, व्हिसल देते हुए पार हो जाती है. सेम थिंग इज़ देयर. द पोएट इज टेलिंग दैट पेंटेड स्टेशंस व्हिसल बाय. कुछ स्टेशन पार हो गया, व्हिसल देते हुए ट्रेन चला गया. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. The poet is now telling not only about the nature, only the hill, only the plain, only the rain, only the meadows, not only about them, but he has watched a common people, a child of a farmer. Maybe he is farmer, maybe he is a shepherd. What does he do? The child is collecting some grass, bushes. एक छोटा सा बच्चा खेत में गिरते पड़ते, क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, बहुत कठिनाई से पहाड़ की ओर चढ़ रहा है और वो बहुत सारा घास को, बहुत सारा बुशेस को इकट्ठा कर रहा है. दैट मीन्स दैट द बॉय बिलोंग्स टू द विलेज. इट इज़ कॉमन. यू हैव सीन द सेम थिंग इन द विलेज एरिया. द पोएट tells us that a little child, he works for his home, for his house, with difficulties in the village area. Now the next line. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. You see that the composition of the lines, the poet tells us that he looks upon a tramp. ट्रम्प मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया. ट्रम्प
एक भटक्कर आदमी जो यहाँ वहाँ घूमता हो, कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पस नहीं, कोई एम नहीं, ऐसे लोग आप लोग रेलवे स्टेशन में ज़रूर देखे होंगे। ऐसा एक ट्रैम खड़ा है और वो ट्रेन को देख रहा है एंड गेजेस, लगातार देख रहा है। गेज गेज मीन्स लगातार देखना, एक दृष्टि से देखना, लगातार देख रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्या है, कुछ नहीं। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्टिंगिंग द डिजीज। और पोएट कहते हैं, खिड़की से उन्होंने देखे, ग्रीन्स मीन्स फील्ड, ओपन एरिया, घास की मैदान जहाँ पर बहुत सारा डेजी फूल खिला हुआ है। ये भी एक नेचुरल सीन है। दोनों लाइन का मीनिंग देखो अलग अलग तरह का है। एक ट्रैम को उन्होंने देखा जो खड़ा है, जिसका कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी का, एमलेस पीपल। एक तरफ से और भी बताते हैं ये डेजी फूल से भरा हुआ मैदान को उन्होंने देखा। Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. Road and load. You see that similarity of the words. Rhyme scheme. Cart means बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, दोनों ही हो सकता है। गांव की रास्ता में उन्होंने एक ऐसा ही गाड़ी को देखा जहां डगमगाते हुए एक व्यक्ति अपना बोझ को लेते हुए उस गाड़ी के साथ साथ जा रहा है। दैट इज़ ए कॉमन पिक्चर ऑफ द विलेज आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी। यू मस्ट हैव सीन इट। आपने देखा होगा गांव में धान कटाई के बाद बैलगाड़ी में धान को लेकर, बहुत सारा धान का बोझा को लेकर किसान किस तरह से बैलगाड़ी को हाँकते हुए चलता है। सेम पिक्चर इज़ देयर। डगमगाते हुए बहुत सारा बोझ है, वो आदमी अपना बोझ लेके उस बैलगाड़ी में डगमगाते हुए चल रहा है। नेचुरल सीन ऑफ द विलेज। कवि ने ये चीज़ को भी देखा, नोटिस किया और लिखे भी। एंड हियर इज़ ए मील, क्योंकि ट्रेन बहुत कई जगह को पार होकर चल रही है। अब एक मिल को उन्होंने देखा। मिल मीन्स छोटा सा फैक्ट्री, जैसे सपोज दैट राइस मिल, सॉ मिल, लकड़ी जहाँ कटा जाता है, सॉ मिल, राइस मिल, लाइक दैट। एंड देयर इज़ रिवर, और दूर में उन्होंने एक नदी को भी देखा। अगेन द नेचुरल थिंग, ईच ग्लीम्स एंड गॉन फॉर एवर। द पोएट रिग्रेट्स नाउ, पश्चाताप करते हैं। ओह, ये सभी दृश्य, सभी नेचुरल ब्यूटी, गिफ्ट ऑफ द नेचर, गिफ्ट ऑफ द गॉड, ये मेरा आँखों के सामने से एक झलक में पार हो गया हमेशा के लिए, दोबारा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट चिल्ड्रन, ए ग्रेट मैसेज has been conveyed by the poet R.L. Stevenson that we should enjoy the nature, we should live upon them. When we have the time, we should look at the nature, how beautiful it is. आप कभी सूर्योदय को देखना, सूर्यास्त को देखना, प्रकृति का दृश्य को देखना बहुत ही मधुर है। द नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड। कभी मोबाइल की दुनिया, इस स्क्रीन की दुनिया से बाहर होकर कभी नेचर को भी देखो, कितना ये सुंदर है, जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। इस व्यस्त ज़िंदगी में हम लोगों के पास समय नहीं है इस प्रकृति को देखना, बारिश को देखना। यही कवि ने बताए हैं।
जे एक छोटा सा बच्चा रेलवे कैबिन से पूरा दुनिया को देखा, तो क्यों हम नहीं देख सकते हैं। आई होप द चिल्ड्रेन you have understood this poem very nice. Okay, bye.